Welcome friends to one another lecture of the same chapter with the same standard. Standard is 9th, chapter is 7th and lecture number is 6. As I already told you that the chapter is very diverse, as the name is indicating the diversity in the living organisms. So the living organisms are huge diverse, that's why we came with another lecture, that is lecture number 6, and hopefully we will have 3 or 4 another lectures. Such a huge diversity is there for living organisms. So far in this chapter we have discussed about various classifications and the classifications of the plant kingdom also. In the plant kingdom we have discussed 3 different divisions so far, that was the Thallophyta, Bryophyta and the Pteridophyta. Along with Pteridophyta we discussed about the cryptogams and the phanerogams also. Today we start with the gymnosperm and the angiosperm. So gymnosperm is one another division of plant kingdom, that is division number 4. Gymnosperm. Division number 4, gymnosperm. This division of kingdom Plantae does include well differentiated body part. Definitely ब्रायोफाइट्स में नहीं थे, थैलोफाइट्स में नहीं थे, लेकिन टेरिडोफाइट्स में थे. सो ये लिटिल बिट मोर इम्प्रूव्ड एंड लिटिल बिट मोर डेवलप्ड प्लांट्स हैं, तो डेफिनेटली बॉडी पार्ट्स विल बी वेल डिफरेंशिएटेड, वास्कुलर टिश्यूज विल बी देयर फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड in the form of xylem and phloem. Flowering will not be there. This is the key point of this division. Flowering will not be there, fruiting will not be there, and their seeds will be naked, exposed to direct to the environment. These are the main key features. So let me write them down. First, they are more developed as compared to previous 3 divisions. Friends, it is the point where we have to think about that previous 3 divisions means the Thallophyta, Bryophyta and the Pteridophytes. Definitely those are more developed plants than previous 3 divisions. They have well differentiated body parts like roots, stem and leaves and much more. Next, they have well developed vascular system. They have well develop a vascular system in the form of definitely xylem and phloem, in the form of xylem and phloem for transportation of water and food. सिंपली ये अभी तक हम पढ़ते आए हैं सारे के सारे करेक्टर्स, राइट.
ये करेक्टर हमने थोड़ा सा पढ़ा था, इस करेक्टर को भी पढ़ लिया। एंड द थर्ड वन, इवन थर्ड वन वी हैव स्टडीड सो फार, बट द न्यूअर वन इज फोर्थ करेक्टर, विच इज दैट द प्लांट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म have necked seeds. Plants of gymnosperms have necked seeds. This is the key character of gymnosperm. So fourth division का fourth point, that is plants of gymnosperm do not have flowers and fruits. So they have necked seeds exposed direct to the environment. Exposed direct to the environment. One another key factor, one another key point of this division is that plants of gymnosperm are long, tall, perennial, woody. Long, tall, perennial and वुडी। दैट मीन्स पेरिनियल मीन्स एक बार ये प्लांट्स इम्प्लांट कर दें तो सालों साल चलते। पेरिनियल मीन्स ईयर्स ओवर द ईयर्स। वुडी मीन्स इनमें स्ट्रॉन्ग वुड मिलेगी। एंड एवरग्रीन आल्सो। सो दीज प्लांट्स आर लॉन्ग और द टॉल, evergreen, perennial and woody। ये एक एक्स्ट्रा की पॉइंट है इस जिम्नोस्पर्म का, क्योंकि प्रीवियस 3 पहले भी पढ़ते आए हैं। जिम्नोस्पर्म में हमने ये 2 डिफरेंट की पॉइंट्स पढ़े हैं और यही इस जिम्नोस्पर्म डिवीजन के मेन कैरेक्टर्स हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो साइकस एंड पाइनस। इसको देवदार भी बोलते हैं। The students who belongs to the hilly regions can understand the Devdar tree, right? Those are not usually grows on slopy land of the hills. तो देवदार, पाइन्स और साइकस ये हमारे मेजर एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द जिम्नोस्पर्म। नाउ कमिंग ओवर टू द एंजियोस्पर्म, द 5th डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। So before we move to the 5th division of this kingdom, I should tell you कि अभी तक हमने जितने डिविजन्स पढ़े हैं उनमें कहीं भी फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यानी किंगडम प्लांटी में अभी तक हम जो भी पढ़ते आए हैं उनमें से एक भी प्लांट में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन नहीं हुआ है। यानी इन सब में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल था टिल क्रिप्टोगैमस। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो हाँ, उसमें सीड का प्रोडक्शन है बट फ्लावरिंग नहीं।
अब बात करें एंजियोस्पर्म्स की, द फिफ्थ डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो डेफिनेटली एंजियोस्पर्म्स मोस्ट डेवलप्ड प्लांट होंगे। एंजियोस्पर्म में वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होंगे। एंजियोस्पर्म में वास्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा होगा फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये तीनों पॉइंट्स में नट सेल में लिख देता हूं, बट द की फीचर्स आर कि दीज आर द फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें फ्लावरिंग होगी, फ्रूट्स होंगे, दैट्स वाई द सीड्स आर enclosed within the fruits and their reproductive parts are hidden. So first feature हम इसको लिख देते हैं more developed, more नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे most। most developed plants, well differentiated, and well developed vascular system। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर दिया। फोर्थ, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। इन प्लांट्स में फ्लावर्स का प्रोडक्शन होगा। सीड्स आर enclosed within the fruits। So these are phanerogames। इतना कंफर्म हो गया। आफ्टर दिस एक खास बात कि जो इसमें सीड्स हैं वो दो टाइप के सीड्स होंगे, या तो उसमें सिंगल कॉटिलिडन होगा या उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकेंगे तो डाइकोटिलिडन होगा। सो ऑन द बिहाफ और कॉटिलिडन्स इन द सीड, बीज पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। तो on the behalf of cotyledons present in the seeds, these are further classified into monocots and dicots। सेवंथ पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिवीजन का। on the basis of cotyledons, on the basis of cotyledons, these are subdivided into mono and dicot, monocots and dicots। ठीक है, अब मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन वी विल मूव अहेड। कोई भी सीड लेते हैं हम, सीड को अगर वाटर में सोक कर दें फॉर द ओवरनाइट और सुबह उसको स्प्लिट करें, इफ इट इज इजीली एबल टू डिवाइड इन टू इक्वल हाफ्स, देन इट इज डाइकोटिलिडन्स लाइक ग्राम, मोस्ट ऑफ द पल्सेस, पी, पीनट्स, ये सारे क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ द seeds which are not able to divide into two equal half like grams or sorry like wheat, paddy और भी ऐसे बहुत सारे, maize,
ठीक है, तो उनको बोलते हैं मोनोकॉट्स। समझो, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, थ्रू द डायग्राम आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। मैं यहाँ लिखता हूँ एक साइड में मोनोकॉट, यहाँ लिखता हूँ डाइकॉट। यहाँ लिखता हूँ मोनोकॉट्स और यहाँ लिखता हूँ डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स का एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं सिंपली। दिस इज द डायग्राम ऑफ मेज सीड, बचपन से पढ़ते आए हैं। डाइकॉट में बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता हूं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही कॉटिलिडन है और यहाँ पर 1 और 2 दो कॉटिलिडन्स हैं। सो ये हुए डाइकॉट और ये हुए मोनोकॉट्स। इसके सीड की बात करें तो सिंपल 1 कॉटिलिडन, इसके सीड की बात करें तो 2 कॉटिलिडन्स। ठीक है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स का मेजर डिफरेंस। रूट्स की बात करें सो द फर्स्ट वन, सेकेंड रूट्स की बात करें तो दीज आर फाइब्रस रूट्स। मोनोकॉट्स की रूट्स फाइब्रस होंगी, डाइकॉट्स की रूट्स प्राइमरी, प्रोमिनेंट और टैप रूट। क्लियर? यानी इसकी रूट्स टैप रूट होंगी, मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट होंगी। स्टेम की बात करें तो इसका स्टेम फॉल्स स्टेम होता है, जैसे पोटैटो, रियल स्टेम नहीं है। मेज में स्टेम तो है लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। बनाना स्टेम तो है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। वीट क्या सॉलिड स्टेम होता है वीट में, है ना, इट इज़ लाइक हॉलो। तो फॉल्स स्टेम होगा और हॉलो होगा, यानी अंदर से सॉलिडिटी नहीं होगी। तो इसका स्टेम क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एंड मोर वुडी एंड मोर डेवलप। लीव्स की बात करें तो इसमें पैरेलल वेनेशन होगा। पैरेलल वेनेशन का मतलब बैम्बू का प्लांट लो, मेज का प्लांट लो, मेज की लीव्स लो, बैम्बू की लो, शुगर कैन लो। ठीक है, इनमें क्या है, लीव्स में जो वेनेशन है, लीव्स लॉन्ग होंगी, इट विल बी लाइक दिस, और इनमें वेन्स पैरेलल होंगी, कुछ ऐसे होगी, राइट। सो दिस इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। और डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन। दैट मीन्स इसके अंदर लीव्स कुछ ऐसी होंगी और इसके अंदर वेन्स का टाइप कुछ इस वे का होगा, जाल बना रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलम, रेटिकुलेट वेनेशन। फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, दैट इज नोन एज पेटल्स फॉर यू ओनली।
आप लोगों के लिए इतना बहुत है कि फ्लावर्स का जो कलरफुल पार्ट है दैट इज नोन एज पेटल्स। तो इसमें या तो 5 पेटल्स होंगे और मल्टीपल ऑफ 5, या तो 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे एंड सो ऑन। 5 या 5 के मल्टीपल्स में होंगे। और इसमें दैट मीन्स डाइकॉट्स में वी हैव 3 पेटल्स और मल्टीपल ऑफ 3। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स मेज, सुगर कैन, बैम्बू, wheat, paddy एंड सो ऑन। यहाँ बात करें इसके एग्जांपल्स की, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम्स ग्राम्स, पीनट, मैंगो, नीम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी सारे वो प्लांट्स जिनके सीड्स 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द किंगडम प्लांटी। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद किंगडम एनिमेलिया। प्लांटी किंगडम से काफ़ी बड़ा है किंगडम एनिमेलिया। सो बी रेडी फॉर येट अनदर 3-4 lectures, 3-4 consecutive lectures regarded new kingdom, and that is kingdom Animalia. Till सेम इंस्ट्रक्शन जो अभी तक देते आया हूँ, इसको लिख लो, लर्न कर लो और इससे रिलेटेड टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर दो। बेस्ट ऑफ लक।